Hi guys, welcome back to 12 Minutes to CLAT. This is episode 5 in our Law of Constitution. And this is going to be a slightly shorter episode because the topics that we're going to discuss in this particular episode are going to be pretty easy, pretty straightforward, but very, very important. Particularly, we're going to discuss about the last fundamental right, क्योंकि हमने already पहले के 5 कर लिए हैं. So the sixth fundamental right is the 5 writs of the Indian Constitution. I'll tell you the importance of this right. B.R. Ambedkar, the father of the Indian Constitution, the chairman of the drafting committee of the Indian Constitution, said that this right, the right to constitutional remedies, which is the sixth fundamental right, जिसमें ये 5 writs दे रखी हैं, is the heart and soul of the Indian Constitution. क्यों उन्होंने ऐसा बोला? Let's try and understand that. We'll also discuss the directive principles of state policy, जिसको DPSPs बोलते हैं, and the fundamental duties as well. DPSPs and fundamental duties are not to be by-hearted. ऐसे इसको रटना नहीं है, but इसका एक basic idea होना चाहिए as to what is given, why are they given at all, why are they important from constitutional law perspective. इसको हम detail में discuss करेंगे. So stay with me till the end. As usual, please make your notes. है ना, notes अपने आपको बनाने पड़ेंगे ताकि आप लोगों को बार-बार ये sessions ना देखने पड़े. So first thing we're going to discuss is the app that we had recently launched for all of you. तो आप लोग definitely इसको download कर सकते हो, install कर सकते हो Play Store से. And we will be having a lot of courses. We in fact have a lot of courses here that can help you immensely in your preparation आगे जाकर भी. So you make use of those courses. ठीक है, they're extremely affordable, very practical on a very good platform, so that you get a lot of things, not just the concept but also a lot of practice questions for all kinds of law exams. Okay, अब moving ahead with this is Article 32, which is right to constitutional remedies. देखो अभी we've already done the 5 fundamental rights, right? We started from equality, है ना, हमने इक्वालिटी से स्टार्ट किया था. इक्वालिटी के बाद में भी मूव टू फ्रीडम, है ना. फ्रीडम के बाद में हमने एक्सप्लॉयटेशन करा. एक्सप्लॉयटेशन के बाद में रिलीजन वाला राइट आ जाता है ना. फिर उसके बाद में एजुकेशनल एंड कल्चरल राइट्स आ जाता है. सो दीज 5 राइट्स आर ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस एपिसोड्स. नाउ टेल मी, अगर ये पांचों राइट किसी ने वायलेट करे या एनी ऑफ दीज राइट्स इज वायलेटेड, सो व्हाट डू आई डू? हम लोग बोलते हैं कोर्ट जाएंगे. तो कोर्ट कैसे जाएंगे, किस तरह से जाएंगे, वेयर इज इट रिटन कि कोर्ट जाएंगे? दैट इज फंडामेंटल राइट नंबर 6, which is constitutional remedies. What constitutional remedies do we have? हमारे पास क्या solution है when any of these 5 fundamental rights are violated? तो इसके अंदर under constitutional remedies there is something called a writ. ठीक है, that is filed. ठीक है, WRIT, which is a writ. So there are 5 kind of writs, as I told you in the main screen. हम discuss करेंगे कौन सी 5 types, उनके क्या मतलब होते हैं. Again, very important to note, India में writs can only be filed either in the Supreme Court or only in the High Courts of India, right? So under Article 32, you do it in the Supreme Court of India, and under Article 226, you do it in the High Courts in India. Only in these courts can a writ be filed, otherwise writ cannot be filed in a lower court. सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल करना अलाउड नहीं है, राइट? अब रिट्स का आया कहां से सिस्टम? रिट्स का सिस्टम हमने इंग्लिश लॉ से लिया है. इंग्लिश लॉ में इसको प्रेरोगेटिव रिट्स बोलते थे, इंडियन लॉ में हम लोग उसको नॉर्मली रिट्स बोलते हैं. इनिशियली बिफोर 1950 व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनैक्टेड, हमारे पास कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास, दीज आर द ओल्डेस्ट कोर्ट्स इन इंडिया. लाइक ये सुप्रीम कोर्ट से भी पुराने कोर्ट्स हैं इंडिया में. सिर्फ इनमें ये रिट्स फाइल करना अलाउड था. But at this point in time, the Supreme Court as well as all the high courts in India can take writs, right? ऐसा कोई नहीं होता कि ये वाला हाई कोर्ट की वैल्यू कम है डिसीजन के, दूसरे हाई कोर्ट की ज्यादा है. नहीं, all the high courts are kept at the same pedestal, right? तो यहाँ पर सारे हाई कोर्ट्स और इसमें कर सकते हो. As I told you, 32 for the Supreme Court and 226 for the high courts in India. अब ये रिट्स होती कौन सी है? ये बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. ठीक है, इसके समझेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में कि हाउ डू वी यूज दीज रिट्स. ये होना चाहिए, आपको पता है ना, एज अ लॉयर, एज अ लॉ एस्पिरेंट, एवरीबॉडी मस्ट नो कि रिट्स की एक्चुअली वैल्यू क्या है. सो द फर्स्ट काइंड ऑफ रिट इज हेबियस कॉर्पस. You guys must remember that in one of the episodes we were discussing right to freedom. I told you that whenever police catches you or police arrests you, they have to produce you in front of a judicial magistrate within a period of 24 hours. 24 घंटे के अंदर अंदर आपकी पेशी होना जरूरी है. अब what if the police does not do it? For example, say police came to my house on 26th, they arrested my brother. Now it is 30th, I have no idea where my brother is. वो पुलिस कस्टडी में कहीं अंदर है, मुझे उससे मिलने भी नहीं दिया जा रहा है, nor is he being produced in a court of law. So what do I do in that case? Where is my brother? How do I ask? पुलिस तो बताएगी नहीं. I can definitely go to a court in this case, to the Supreme Court or a High Court,
by a writ of habeas corpus. Habeas corpus, the real meaning of habeas corpus is to have a body. Basically, where is my brother? Where is that body? कहाँ है वो? है ना, आपने उसको कहाँ छुपा रखा है? Bring that person to the court. तो कोर्ट फिर ऑर्डर्स इशू करता है with this particular habeas corpus writ. इसमें it is enforced to protect the fundamental right of liberty of an individual against unlawful detention. What is unlawful detention? When you are not doing with the mercy of the court. आप 24 आवर्स में उसको प्रोड्यूस ही नहीं कर रहे हो. हमने ये पढ़ा था ना कि पहले 24 घंटे में यू हैव टू प्रोड्यूस दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ अ जुडिशियल मजिस्ट्रेट. फिर अगर मजिस्ट्रेट बोलते हैं कि हाँ उसको बढ़ाना चाहिए और 7 दिन के लिए आप उसको पूछताछ कर सकते हो, तो फिर आप कर सकते हो. आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते. पुलिस के पास ये कोई अथॉरिटी नहीं होती है. ओके, तो इस केस में आप हेबियस कॉर्पस का रिट फाइल कर सकते हो. ओके, तो व्हाट डज दिस रिट डू? कोर्ट क्या करता है इसमें? इस केस में कोर्ट एक पब्लिक ऑफिशियल को कमांड करता है, कुड बी अ पुलिस ऑफिसर, समबडी, टू डिलीवर द डिटेन्ड पर्सन इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट एंड प्रोवाइड वैलिड रीजंस फॉर डिटेंशन. हमें बताओ क्यों आपने किसी को पकड़ रखा है, क्या रीजन है? आपके पास कोई वैलिड रीजन है? देयर कैन नेवर बी अ वैलिड रीजन. द ओनली वैलिड रीजन कुड बी हमने प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है ना, कि भाई इस इंसान पर टेररिज्म जैसे चार्जेस हैं. तो अगर इतने सीरियस चार्जेस होते तो कोर्ट कई बार आपकी बात सुनता है. बट अगर और कोई भी चार्जेस है, इवन इफ इट्स अ क्राइम ऑफ मर्डर, यू हैव टू प्रोड्यूस दिस पर्सन इन फ्रंट ऑफ अ कोर्ट फर्स्ट. आपको प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा. दैट इज कंपल्सरी फॉर एवरीबडी. ओके, तो यहां पर दिस रिट कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ प्रोसीडिंग फॉर अ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में ऐसा नहीं होता. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होता है? बेसिकली कोर्ट की अवमानना करना, not following the orders of the court, not following the directions of the court, bad mouthing the courts, कोर्ट के बारे में अनाप शनाप बोलना, है ना. तो all of that is contempt of court. वो हम कभी आगे जाकर पढ़ेंगे. That's a different law, different act altogether. Contempt of court act है इंडिया में. Now the second kind of writ is certiorari. There are 5 kind of writs that I told you. 2 writs ऐसी है जिसमें लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं. एक है certiorari, एक आगे जाकर आएगा prohibition. certiorari का क्या मतलब होता है पहले ये समझ लेते हैं. अब जैसे देखो, ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट सारे कोर्ट्स के ना कुछ कुछ ज्यूरिसडिक्शन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, एक कोई पार्टी है गुजरात की, ठीक है, इसने कुछ क्राइम कमिट किया है से अहमदाबाद में. दिस पर्सन कमिटेड सम क्राइम अहमदाबाद में, और जिसके साथ क्राइम हुआ है ना, उसकी फैमिली रहती है मुंबई में. उनकी फैमिली स्टेज इन मुंबई. अब ये मुंबई वाली फैमिली ने क्या किया? दे फाइल्ड अ पिटीशन इन दी बॉम्बे हाई कोर्ट, या फिर बॉम्बे के किसी कोर्ट में उन्होंने इसके अगेंस्ट केस फाइल किया. अब आप मेरे को बताओ, इफ द क्राइम हैज हैपेंड इन गुजरात, अहमदाबाद, कैन दी बॉम्बे हाई कोर्ट टेक दैट केस? नॉट अंडर यूजुअल सर्कमस्टांसेस. नहीं हो सकता ऐसा. तो ये क्या हो गया? इफ द बॉम्बे हाई कोर्ट एडमिट्स सच अ केस, बॉम्बे हाई कोर्ट अगर एडमिट कर लेता है ऐसा केस, देन वी हैव अ प्लान wherein we can file the writ of certiorari and we can go to the court and say कि भाई this particular decision taken by the Bombay High Court, यहां पर ना डिसीजन आ चुका होता है, ठीक है, वो कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं. तो आप बॉम्बे हाई कोर्ट में यहां पर बोलते हो जाकर, या फिर आप सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हो, और आप बोलते हो कि भाई इनके पास तो पावर ही नहीं थी यहां पर कुछ भी डिसीजन देने की. दे हैड नो पावर. द पावर वाज इन द गुजरात हाई कोर्ट. The matter should have been in the Gujarat High Court because it's a Gujarat में cause of action हुआ है उसका, है ना. Everything that had happened, the crime that had happened in Gujarat. Just because one party के parents belong to Maharashtra doesn't mean कि भाई वो बॉम्बे हाई कोर्ट में जाएगा केस. ओके, तो इसीलिए writ of certiorari is issued to a lower court directing that transfer of a case for review usually overrule the judgment of the lower court. तो अगर बॉम्बे हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है, you can file a writ of certiorari in the Supreme Court. Why? Because Bombay High Court से अपर कोर्ट कौन सा होगा? हाई कोर्ट से ऊपर सुप्रीम कोर्ट आता है. So you can go to the Supreme Court and file a writ of certiorari, right? So Supreme Court issues writ of certiorari in case where decision passed by the court is challenged by the party. It is issued in case of higher court matter of jurisdiction. आप क्या करते हो? ओवर jurisdiction कर लेते हो, अपना jurisdiction assume कर लेते हो, जबकि आपके पास है नहीं, है ना. आप अपने स्टेट के केसेस ले सकते हो ना, आप थोड़ी कोई रैंडम किसी स्टेट के केस ले लोगे यहाँ पे. दैट इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर ऐसे लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन या ओवर जुरिस्डिक्शन हो तो आप कर सकते हो. तो ये एक मैकेनिज्म है जो आपके फंडामेंटल राइट्स को सेव करने में हेल्प करता है. ऐसा नहीं कि केस किसी का कहीं भी फाइल हो जाए, किसी को हरास करने के लिए आप छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केस फाइल कर दिया. दैट कैन नॉट बी डन. यू कैन नॉट फाइल केस एज पर विम्स एंड फैंसीज, राइट. यू हैव टू डू इट वेरेवर द कोर्ट हैज अ जुरिस्डिक्शन. तो अगर किसी कोर्ट ने ऐसा गलत डिसीजन दे दिया है, मान लो बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसकी सुनवाई भी कर ली,
Bombay High Court gave a decision against this person. This person can always file a writ of certiorari to Supreme Court stating इनके पास power ही नहीं थी, they were unnecessarily doing it. Why did they even do it? ठीक है, तो lack of jurisdiction, over jurisdiction के केस में we can file a writ of certiorari. It's very easy. किसके पास पावर ही नहीं है. अब ये है प्रोहिबिशन. प्रोहिबिशन और सर्चोररी में हमेशा कंफ्यूज होते हैं बिकॉज सेम बात है. कैसे सेम बात है मैं आपको समझा देता हूं. प्रोहिबिशन के केस में भी पता है क्या होता है, जैसे मैंने आपको सर्चोररी में बताया, देयर इज अ हायर कोर्ट, हायर कोर्ट से लोअर कोर्ट को डायरेक्शन आ रहे हैं, राइट. नाउ इन केस ऑफ सर्चोररी व्हाट हैड हैपेंड, the lower court had already passed some kind of order or judgment. उन्होंने कोई ऑर्डर ऑलरेडी पास कर दिया था. Once this order was passed, I went to the high court stating कि भाई मेरे साथ गलत हुआ है ना. तो that was the case of certiorari. Whereas prohibition is also exactly same. Prohibition में भी higher court asks the lower court to not act outside jurisdiction, लेकिन that is during the case. जब वो केस फाइल हुआ है तभी उसका डिसीजन नहीं आया है. तो आप क्या करते हो, आप पहले ही आप किसी हायर कोर्ट के पास जाते हो, मतलब बॉम्बे हाई कोर्ट वाला एग्जांपल लेते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाओगे प्रोहिबिशन का रिट लेकर और आप बोलोगे कि ये तो केस फाइल ही गलत हुआ है, इस कोर्ट के पास पावर ही नहीं है. बॉम्बे हाई कोर्ट हैज नो पावर टू यू कुड से इवन एंटरटेन और टेक दैट केस, राइट. तो इसीलिए ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर केस, व्हाइल द डिसीजन हैज नॉट कम, द ऑर्डर और जजमेंट हैज नॉट कम, बट व्हाइल दैट केस इज बीइंग फाइल्ड, आप पैरेलली साथ साथ आप सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगा सकते हो कि प्रोहिबिट दिस कोर्ट, है ना. प्रोहिबिशन का मतलब किसी को रोकना होता है, प्रोहिबिट करना होता है, राइट. सो प्रोहिबिट दिस कोर्ट फ्रॉम टेकिंग एनी फर्दर एक्शन. So it is issued by a higher court to a lower court to enforce inactivity in the jurisdiction, as I told you. Happens only in case where the higher court of the discretion that case falls outside the jurisdiction of the lower court, कि वो lower court के अंदर आता ही नहीं है वो केस, राइट. अब आपको समझ में आ रही है ये बातें. इट्स वेरी वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, कंफ्यूज मत हो ना. सर्चोररी इज व्हेन अ डिसीजन हैज कम, प्रोहिबिशन व्हेन अ डिसीजन हैज नॉट कम बट यू हैव ऑलरेडी रियलाइज कि भाई तो गलत कोर्ट ने केस ले लिया है. दिस कोर्ट डज नॉट हैव द पावर टू टेक दिस केस, है ना. कोर्ट के भी अपने अपने पावर्स डिफाइंड होते हैं. कोर्ट कैन नॉट टेक एनी केस व्हाट दे वांट, राइट. So it can only be issued against judicial and quasi-judicial authority. Another very important point. What is a judicial authority? All the courts in India are judicial authority. What is a quasi-judicial authority? You must have seen that India में these days there are a lot of tribunals. There is NCLT, the National Company Law Tribunal. There is NGT, National Green Tribunal. A lot of such tribunals. So those are called quasi-judicial authorities. So prohibition, judicial और quasi-judicial authorities के against issue किया जा सकता है. ये difference है certiorari में और prohibition में. Next category is mandamus. Mandamus is Indian Constitution's most used most used writ. अब why is mandamus most used? Mandamus में ऐसा होता क्या है? Mandamus का मतलब होता है, इसका आसान मतलब अगर मैं आपको इसका definition बताऊं तो मतलब होता है to command. ठीक है, इसका मतलब होता है to command. तो आप किसको कमांड कर रहे हो? Who are you commanding it to? इसमें हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी भी सरकारी अथॉरिटी को कमांड कर सकता है कि ऐसा पर्टिकुलर चीज क्यों हो रहा है, राइट. सो द रिट ऑफ mandamus issued to subordinate court, an officer of the government or a corporation or other institution commanding the performance of certain acts or duties. क्या बोलता है ये बोलता है कि भाई अपना टास्क कंप्लीट करो और क्यों आपने डायरेक्शंस अभी तक फॉलो नहीं किया. तो मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं इसका, ठीक है, ऐसे समझना मुश्किल है थोड़ा. सो when I was studying in college, there was a garden which was considered a heritage site close to my college. Now, a lot of people used to visit it. तो मेरे college के पास था. I also went to visit it one day. वहां पर I saw that garden is in a very bad state. वहां पर एक छोटा सा pond जैसा था, वो बिल्कुल गंदा हो रहा है. वहां पर तो नाली जैसा बन गया है. सारे जो उस पर छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स है वो एकदम कभी उसे पत्थर गिर रहे हैं, कभी उसे कुछ गिर रहा है. गार्डन्स बहुत बुरी तरह से मेंटेन्ड है. सो वी आस्क्ड पीपल देयर कि इतनी गंदी हालत क्यों है, मतलब इसको तो इतना फेमसली माना जाता है, इट्स अ हेरिटेज साइट काइंड ऑफ अ थिंग, लोग आते हैं यहाँ पर घूमने. तो वहां पर हमको लोगों ने बताया कि सर यहाँ पर टोटल 50 पीपल की स्ट्रेंथ होनी चाहिए आइडियली. गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 50 पीपल फॉर दिस पर्टिकुलर प्लेस, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम ओनली 4 पीपल आर वर्किंग. नाउ यू टेल अस कि हम 4 लोग कैसे पूरे गार्डन को रख सकते हैं. फेयर पॉइंट. अब सवाल ये है कि सरकार ने जब 50 बोले हैं तो 4 ही लोग क्यों हैं, है ना. दैट्स अ फेयर क्वेश्चन. तो गवर्नमेंट का वो नोटिफिकेशन निकाला कि भाई सच में 50 लोग कर रखे हैं, झूठ नहीं बोल रहा था.
है ना। उसके बाद में हमने देखा कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों नहीं किया। तो जो भी रेलेवेंट अथॉरिटीज थी जो यहाँ पर मतलब अपॉइंटमेंट वगैरह करती हैं चीजों की, हमने उनको लेटर लिखे कि व्हाई डिड यू नॉट डू इट। भाई यहाँ पे तो तुमने दे डिड नॉट रिप्लाई टू आवर लेटर, है ना। वी गिव देम अ पीरियड ऑफ 30 days। देन वी फाइल्ड अ PIL एज अ रिट ऑफ मैंडेमस। ठीक है, दैट वाज द रिट ऑफ मैंडेमस वेयर वी आस्क्ड द हाई कोर्ट इन राजस्थान टू कमांड दिस पर्टिकुलर अथॉरिटी, जिन्होंने 50 लोगों की स्ट्रेंथ सैंक्शन की थी, कि आप वो 50 लोगों को लगाओ। एंड दिस हैपेंड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 year, ये हुआ वहां पे। ठीक है, फंड्स वर रिलीज्ड ताकि उनकी साफ सफाई कराई जाए, प्रॉपर्ली उसको ठीक वापस कराया जाए। एंड दैट पर्टिकुलर गार्डन नाउ इज अगेन इन अ वेरी वेरी गुड सिचुएशन, राइट। तो दैट इज समथिंग दैट यू कैन डू। तो इसमें आपको कोई लॉयर होने की जरूरत नहीं है ना। You just need to, you could say, be someone who understand writs, who understand as to what can be done if something like this is being done। ठीक है, so that was a government का गार्डन था बेसिकली, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और कई कई और अथॉरिटीज के अंडर आता था। तो क्यों नहीं उसका अपकीप किया जा रहा, है ना। तो दैट वाज गोइंग टू बी डन एंड दैट वाज बीइंग डन हियर अंडर द रिट ऑफ मैंडेमस, राइट। तो मैंडेमस कमांड करता है ऐसे किसी भी अथॉरिटी को जो सरकारी अथॉरिटी होती है। अब लास्ट काइंड ऑफ रिट इज क्वो वारंटो, एंड दिस इज द इजीएस्ट वन। क्वो वारंटो का एक्चुअल मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, इट आस्क्स यू अ क्वेश्चन बाय व्हाट अथॉरिटी। ठीक है, तो इसका आई थिंक इट्स नॉट रिटन हियर, ओके आई विल राइट इट फॉर यू। ओके, इट मींस बाय व्हाट अथॉरिटी। इसका क्या मतलब है, मान लो यू आर गोइंग टू NLU, आप किसी NLU या किसी भी सरकारी कॉलेज में जाते हो, तो वहां पर एक वाइस चांसलर होते हैं। ठीक है, देयर इज अ वाइस चांसलर इन दोस कॉलेजेस। देयर इज आल्सो अ रजिस्ट्रार इन दीस कॉलेजेस, राइट। अब मान लो रजिस्ट्रार की जो क्वालिफिकेशन गिवन है अंडर लॉ कि भाई कौन रजिस्ट्रार बन सकता है, दैट इज मिनिमम ऑफ से एन IAS ऑफिसर। ओनली एन IAS ऑफिसर कैन बिकम द रजिस्ट्रार इन अ लॉ स्कूल, लेट्स से। ओके, अब यहां पर अ न्यू रजिस्ट्रार हैज बीन अपॉइंटेड इन वन ऑफ द NLUs एंड दिस पर्सन डज नॉट होल्ड दिस पर्टिकुलर मेरिट। उनके पास है ही नहीं, ही इज नॉट एन IAS। से फॉर एग्जाम्पल वो इंसान अपने स्टेट का, स्टेट सर्विसेज में, जैसे PSC भी होती है ना, जो स्टेट की PSCs होती है, उसका ऑफिसर है ना। जैसे अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में एक RAS होता है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। वैसे हर स्टेट में अपना अपना ऐसा होता है। तो RAS को या फिर स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले इंसान को IAS वाली पोस्ट दे दी है। तो नाउ आई कैन गो टू अ कोर्ट एंड आस्क द कोर्ट कि भाई बाय व्हाट अथॉरिटी इज दिस पर्सन क्लेमिंग दिस। वो कैसे इस पोस्ट को क्लेम कर रहा है, उसके पास तो रिक्विजिट क्वालिफिकेशंस ही नहीं है। देन कोर्ट विल इशू ऑर्डर्स, कोर्ट विल आस्क दैट पर्सन कि आप बताओ कि आपके पास क्वालिफिकेशंस है या नहीं है, राइट। और अगर नहीं है तो आप क्यों उस पोजीशन को होल्ड कर रहे हो, हाउ आर यू इवन होल्डिंग दैट पोजीशन। देन द कोर्ट विल होल्ड एवरीबडी लायबल जिन्होंने वो अपॉइंटमेंट किया है, बिकॉज आपको क्लियरली पता है कि यहाँ पर क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत है, राइट। तो इसीलिए इट्स इशूड अगेंस्ट अ पर्सन हु क्लेम्स और सर्व्स अ पब्लिक ऑफिस। तो थ्रू दिस रिट कोर्ट इंक्वायर्स बाय व्हाट अथॉरिटी द पर्सन सपोर्ट्स हिज और हर क्लेम, कि आप किस तरह से उस ऑफिस को होल्ड कर रहे हो। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। कोई वरना किसी को कोई कहीं भी अपॉइंट कर देगा सरकारी ऑफिस में, है ना, कोई अपने भाई भतीजे कोई कर देगा, इट्स सो इजी। तो इसीलिए थ्रू दिस रिट कोर्ट इंक्वायर्स इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ अ पर्सन टू पब्लिक ऑफिस। द रिट प्रिवेंट्स द इलीगल अजम्पशन ऑफ अ पब्लिक ऑफिस बाय एन इंडिविजुअल। आप कोई भी अगर पब्लिक ऑफिस पे इलीगली आ जाओ, पब्लिक ऑफिस मतलब सरकारी ऑफिस कोई भी तरीके का, वहां अगर जो बेसिक क्वालिफिकेशंस अगर आपने वो मीट नहीं कर रखी है, you cannot sit in that office. And if somebody sits, you can always file a writ of quo warranto. So we did 5 writs: habeas corpus, certiorari, prohibition, mandamus and quo warranto. ये 5 writs हैं, बहुत आसान है, and that is the end of fundamental rights. लेकिन फंडामेंटल राइट्स में ना एक बात होती है, कई कई बार क्या होता है, हमारे कुछ फंडामेंटल राइट ना सस्पेंड हो जाते हैं। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो ऐसी चीज है जो बहुत ही इनग्रेन्ड है, हमको दे रखी है बेसिकली फॉर आवर ओन पर्पस, राइट। अब क्योंकि वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, वी आल्सो हैव टू अंडरस्टैंड कि इतने सारे अच्छे राइट्स हमें दे क्यों रखे हैं। ये इसलिए दे रखे हैं बिकॉज सी, वी डोंट मेक लॉज एज ह्यूमंस, एज नॉर्मल सिटीजंस। लॉज आर मेड बाय आवर रिप्रेजेंटेटिव्स, है ना। मैं जिसको इलेक्ट करूंगा इलेक्शन में, दैट पर्सन विल मेक अ लॉ फॉर मी, राइट, और दैट पर्सन विल एटलीस्ट कंट्रीब्यूट इन मेकिंग अ लॉ फॉर मी। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग देयर। As a result, what is happening here is when these representatives start infringing on your rights, है ना, वो बस कुर्सी पे आ गए और उसके बाद में कुछ भी नहीं कर रहे, या फिर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं जैसे आपके राइट से इन्फ्रिंज हो रहे हैं, ऐसे कोई लॉ ला रहे हैं जिनमें इट्स देयर फायदा एंड योर लॉस। इन दैट केस यू कैन यूज दीज फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, कोई भी स्टेट अथॉरिटी के अंदर आप इसको यूज कर सकते हो, एनी ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बट कभी कभी सस्पेंड हो जाते हैं।
सो अगर इंडिया में नेशनल इमरजेंसी लगती है ना, तो देयर आर सर्टेन फंडामेंटल राइट दैट आर सस्पेंडेड। सस्पेंडेड मतलब आप उन राइट्स को क्लेम नहीं कर सकते उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्योंकि इमरजेंसी इज अगेन एन इमरजेंसी सिचुएशन, राइट? वो एक सिचुएशन है जो हमेशा आती नहीं है। तो उसमें यहाँ पर 6 फंडामेंटल राइट जो आर्टिकल 19 के अंडर दे रखे हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, प्रोफेशन, फ्रीडम मूव थ्रू आउट द कंट्री, रिजाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ऑल ऑफ दैट, वो अपने आप सस्पेंड हो जाते हैं, राइट? ओनली 2 आर्टिकल्स आर देयर दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड अमंग फंडामेंटल राइट्स एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। वो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं? आर्टिकल 20 एंड 21, प्लीज लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नेवर बी सस्पेंडेड। आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के बिना बात के ले जा सकते, ये नहीं कि आपने बस जेल में डाल दिया, आपको मर्जी हो रही थी क्योंकि इमरजेंसी चल रही है। और 21 राइट टू लाइफ, है ना, डिग्निटी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन दैट इज ओनली एंड ओनली इन द केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी। इंडिया हैज 3 काइंड्स ऑफ इमरजेंसीज। वी हैव द नेशनल इमरजेंसी, वी हैव द स्टेट और द कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, सो दोनों सेम होती है, एंड वी ऑल्सो हैव द फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टेट इमरजेंसी और फाइनेंशियल इमरजेंसी में कभी भी कोई भी फंडामेंटल राइट को आप हटा नहीं सकते हो, उसमें सारे फंडामेंटल राइट्स वैलिड है। ओनली इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन दिस बी डन, अदरवाइज इट कैन नॉट बी डन एट ऑल। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, फंडामेंटल राइट्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रखी है। ओके, नाउ सी, फंडामेंटल राइट से मिलते जुलते आसपास के वी हैव समथिंग कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। ये कैसे आया? तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनने की थोड़ी सी तैयारी शुरू हुई थी, तो उस समय एक सप्रू कमेटी थी। सप्रू कमेटी ने 1945 में ये डिसाइड किया कि 2 कैटेगरी में राइट्स होने चाहिए, एक होने चाहिए जस्टिसेबल राइट्स और एक होने चाहिए नॉन जस्टिसेबल राइट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय जस्टिसेबल एंड नॉन जस्टिसेबल? जस्टिसेबल राइट्स आर दोज राइट्स जिसको नॉर्मल सिटीजंस कोर्ट ले जा सकते हैं इफ दिस राइट इज वायलेटेड। Non-justiciable rights are those rights that even if they are violated, you can't take the government or the government authority to the court. अब why would you have a right when you can't take somebody to a court? So fundamental rights are justiciable rights, है ना? कोई भी आपका fundamental right violate होता है, that's justiciable, you can take the authority to the court. Directive principle of state policy, if it is violated, you can't take the government to the court. अब what is the DPSP? ध्यान से इसका नाम पढ़ो। स्टेट पॉलिसी बनाता है ना, गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरीथिंग। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो इन पॉलिसी को डायरेक्ट करते हैं कि भाई व्हाट आर द प्रिंसिपल्स दैट योर पॉलिसी शुड बी बेस्ड ऑन। ओके, बट अगर इनको नहीं फॉलो किया जा रहा है, यू कांट टेक द गवर्नमेंट टू द कोर्ट। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड जस्टिसेबल राइट्स आर फंडामेंटल राइट्स एंड नॉन जस्टिसेबल राइट्स आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यू कांट टेक द गवर्नमेंट टू कोर्ट फॉर DPSPs। ओके, इट इज द गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, अगर कोई बहुत ग्रोस वायलेशन होता है तो कई बार कोर्ट जाता है, अदरवाइज यू आर नॉट अलाउड टू टेक जनरल केसेस गवर्नमेंट टू कोर्ट की भाई आपने ये वाली चीज फॉलो नहीं करी, है ना? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे फॉर एग्जांपल वन ऑफ द DPSP दैट वी हैव इज यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड वाला DPSP 1950 से चल रहा है, बट इंडिया में अभी भी डिबेट चल रही है। वी आर स्टिल डिबेटिंग ऑन द यूनिफॉर्म सिविल कोड, वी डोंट हैव इट येट। So you can't go to a court and say कि भाई why do we not have a uniform civil code? It should be applicable as quickly as possible. No, that cannot be done. है ना? That is the government's prerogative कि what is the situation of the country and what do we require at this point in time. Okay, so that's very important to understand for us. So these are instrument of instructions. So Government of India Act of 1935 is the source of the Constitution from which we have taken a very large part of it. Like हमारे Constitution का बहुत बड़ा part यहाँ से आया है। तो उस टाइम पर इसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बोलते थे। इट बेसिकली इंस्ट्रक्ट्स द गवर्नमेंट एज टू व्हाट प्रिंसिपल्स आर टू बी फॉलोड बाय यू व्हेन यू ब्रिंग एनी लॉ, राइट? नाउ लेट्स मूव कि होते कौन से हैं। ये आपको सारे याद नहीं करने, लाइक वेरी बेसिक। अच्छा, एक केस आया था 1951 में, राइट आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू बीइंग, चंपाकम दोराईराजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, आई थिंक इट वाज, और मे बी यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भी। तो ये केस में क्या बोला गया था, इसमें डाउट ये हुआ लोगों को कि अगर फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ कि भाई किसको ऊपर रखा जाए, तो किसको रखना चाहिए। तो हियर द कोर्ट सेड दैट इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट विद द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट इज ऑलवेज गिवन प्रेसिडेंस। फंडामेंटल राइट हमेशा ऊपर रहेंगे बिकॉज दोज आर जस्टिसेबल राइट्स। DPSP उसके नीचे आते हैं, है ना? फंडामेंटल राइट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। पार्ट 3 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज कम इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? ये पार्ट चेंज हो चुका है, ओके? तो दे आर सब्सिडियरी टू द फंडामेंटल राइट्स। नाउ सी, आई विल टेल यू कि कौन से होते हैं। ये आर्टिकल नंबर्स हैं और ये उनके जो भी मतलब बेसिकली क्या दे रखा है उसमें,
ठीक है, तो आज यहाँ पे तो 37 में साफ साफ दे रखा है, देयर शैल नॉट बी एनफोर्सेबल एनी कोर्ट ऑफ लॉ। स्टार्टिंग इसकी ऐसी होती है, आपको लाइन बाय लाइन याद नहीं करने, बट यू शुड ऑलवेज नो व्हाट आर डीपीएसपीज आर, यू कैन गेट दीज इन ऑड वन आउट्स कभी कभी, राइट। 38 में दे रखा है, आर्टिकल 38 में सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक जस्टिस की, जस्टिस इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड, ओके। 39 talks about principles of policy, what principles are to be followed by the government when they make any policies for our country. 39A talks about free legal aid. आप देखोगे when you go to a court ना, एक पर्टिकुलर सैलरी का स्लैब होता है, अगर आपकी सैलरी सालाना उससे कम है, कोर्ट गिव्स यू फ्री लॉयर्स, कि आप फ्री में अपना केस लड़वा सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो फ्री लीगल एड इज प्रोवाइडेड बाय कोर्ट्स, गवर्नमेंट उसको फंड करती है। 40 इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, दैट्स हैपनिंग इन इंडिया, है ना। हमारे 73rd 74th अमेंडमेंट हुए थे फॉर पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, अमेंडमेंट्स हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे, तब आपको और क्लैरिटी मिलेगी। 41 talks about welfare government promoting right to work, education and all. तो you know that we are a socialist government, है ना। हमारा जो गवर्नमेंट का मेन पर्पस है, that is not to make money, that is to basically ensure welfare of people, कि ज्यादा लोगों को काम मिले, लोगों को एजुकेशन मिले, so that is the main purpose, right, and we know this, so that is another principle that is directing the policies the government make. 42 talks about securing just and humane work and maternity relief also, we have laws for this, है ना। वी हैव सो मेनी मिनिमम वेजेस एक्ट, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, कई सारी लॉज है हमारे पास इस तरीके की। 43 टॉक्स अबाउट फेयर वेजेस, अगेन सेम, है ना, मिनिमम वेजेस, फेयर रेम्यूनरेशन एक्ट है हमारे पास, आजकल तो लेबर कोड आ गए काफी सारे। 44 टॉक्स अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, इस पर डिबेट चल रही है अभी, है ना, दिस इज द यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं थोड़ा तेज इसलिए जा रहा हूँ बिकॉज ये आपको रटने नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए व्हाट इज गिवन इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ओके। Then comes 45, it's free and compulsory education for children. You know, we have Article 21A. It says कि every child who is 6 to 14 years of age shall have free and compulsory education in India, है ना। तो we have right to education also. That comes from this principle. क्योंकि right to education तो आया 2002 में, ये principle तो 1950 से ही है, तो इस principle से निकाला गया था, right? 46 में दे रखा है protection of SC STs. We have so many provisions for them. We have the reservation provisions. We have the SC ST communities, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes. तो ये सब रहता है, वो इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया इन कम्युनिटीज के, जिनको हिस्टोरिकली काफी डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ा है। 47 इज न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन पब्लिक हेल्थ, इस पर भी गवर्नमेंट काफी काम करती रहती है, अगेन दिस इज वेरी सब्जेक्टिव। 48 इज साइंस एग्रीकल्चर एनिमल साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, मतलब आप एग्रीकल्चर को कितना ज्यादा सुधार सकते हो, कितना, क्योंकि इंडिया इज स्टिल एन एग्रेरियन इकोनॉमी। व्हेन वी गॉट इंडिपेंडेंट हम तो फुली एग्रेरियन थे, है ना। 80% ऑफ अस वर एग्रेरियन, सारे लोग मोस्टली एग्रीकल्चर में ही थे। अभी तो चलो फिर भी कम डाउन टू 50% लेकिन स्टिल मेजरली एग्रेरियन है। तो प्रैक्टिसेस कैसे इंप्रूव होगी, फार्मर्स का कैसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज द लास्ट पार्ट। 48A भी है जो बोलता है एनवायरमेंटल एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन ऑल्सो, सो वी हैव द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, हमारे पास कई सारे इस तरीके की लॉज है। 49 बोलता है प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस, मैंने अभी आपको एक वो गार्डन वाला एग्जांपल बताया, है ना। वी आल्सो डू अ लॉट ऑफ क्लासेस जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि भाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक अथॉरिटी है जिसको बोल रखा है कि आप जितने भी मॉन्यूमेंट्स वगैरह हैं उनकी प्रॉपर अपकीप रखोगे, है ना। दे शुड नॉट बी इन बैड सिचुएशन कि वो गिर जाए कभी, ऐसा नहीं हो सकता, ओके। तो इसके लिए काफी सारी लॉज बनी हुई है ना। 50 टॉक्स अबाउट जुडिशरी शुड बी सेपरेटेड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यू नो वी हैव सेपरेशन ऑफ पावर, वी हैव 3 विंग्स ऑफ द यू वुड से पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा उसके 3 अलग अलग विंग्स है। वी हैव द लेजिस्लेचर दैट मेक लॉज, वी हैव द जुडिशरी दैट इंटरप्रेट लॉज, कि लेजिस्लेचर ने अगर कुछ गलत लॉ बना दिया, जुडिशरी विल इंटरप्रेट दैट और वो उसको हटा सकते हैं। दे हैव द पावर टू कॉल कि भाई ये तो अल्ट्रा वायरस है, दिस इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड देन वी हैव द एग्जीक्यूटिव दैट पासेस लॉ। तीनों एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हैं, तो दे शुड बी सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। जैसे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली कंट्रोवर्सी आई थी जहां पर द गवर्नमेंट वांटेड दैट द वे सुप्रीम कोर्ट के जजेस आर अपॉइंटेड, इट शुड नॉट बी इन द कॉलेजियम सिस्टम, द गवर्नमेंट शुड अपॉइंट द सुप्रीम कोर्ट जजेस। अब उसमें क्या होता है, ये जो फ्रीनेस है ना, ये वायलेट हो सकती है कि भाई सरकार तो अपने सारे जज लाने लग जाएंगी, तो दैट कुड बी वायलेटेड, राइट। देन वी हैव 51 व्हिच इज द लास्ट डीपीएसपी, व्हिच इज स्टेट शैल प्रॉमिस इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। दे शुड प्रमोट करना चाहिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अगेन वेरी सब्जेक्टिव। गवर्नमेंट कई बार कोशिश करते हैं कि हम जितना हो सके, और इंडिया तो सबसे ज्यादा पीसफुल ही रहता है, मोस्टली एवरी कंट्री से वी आर क्वाइट पीसफुल, राइट। तो यहां पर दिस इज आर्टिकल 51। सो 37 से स्टार्ट होगी, 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज चलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रियलाइज कि हमारे पास राइट्स तो हैं, all the citizens have rights, the governments have given certain directive principles
कि आप आगे जाकर कैसे आप लॉज बनाओगे। बट राइट्स के साथ साथ कुछ कुछ ड्यूटीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सिर्फ राइट्स एंजॉय थोड़ी करेंगे। एज एन इंडियन सिटीजन आई शुड ऑल्सो हैव सर्टेन ड्यूटीज। अब दोस ड्यूटीज वर नॉट थॉट ऑफ एट द टाइम व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज बीइंग ब्रॉट। जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया जा रहा था ना, तब वो ड्यूटीज को डाला नहीं गया। लेटर एक अलग से कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल बना विच इज 51A। उसको समझते हैं, दैट इज कॉल्ड द फंडामेंटल ड्यूटीज विच इज 51A अंडर पार्ट 4A। तो मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज पार्ट 4। उसका एक एक्स्ट्रा मतलब कह सकते हो पार्ट बना विच इज पार्ट 4A which talks about fundamental duties. It was not originally there in the constitution. It came in the 42nd amendment in 1976. 42nd amendment को mini constitution भी बोलते हैं। When these fundamental duties had come in 1976 by the virtue of 42nd amendment, we had only 10 fundamental duties at that time. हमारे पास उस टाइम 10 थी। अभी फिलहाल हमारे पास 11 है, क्योंकि एक 86th अमेंडमेंट में एक फंडामेंटल ड्यूटी बढ़ाई गई थी। वो कौन सी मैं आपको सारी बताऊंगा। ये जो कमेटी पर्टिकुलर जिसने रिकमेंड किया था उसका नाम है स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड दैट वी शुड हैव सर्टेन फंडामेंटल ड्यूटीज आल्सो। अब सवाल ये है कि इफ अ पर्टिकुलर पर्सन डज नॉट फॉलो दीज ड्यूटीज, अगर वो ड्यूटीज को फॉलो नहीं करते तो कैन दे बी टेकन टू कोर्ट फॉर द सेम। क्या फंडामेंटल ड्यूटी के अगेंस्ट कुछ हो सकता है? द आंसर टू दैट इज नो। अगर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हो और उसके दौरान आपने कोई क्राइम कर दिया है, देन यस, देन किसी एक्ट के अंदर अगर आपने क्राइम किया है तो आप कर सकते हो। जैसे देखो सिंपल सी फंडामेंटल ड्यूटी है कि वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम एंड सो ऑन, राइट? ठीक है, अगर आप नेशनल एंथम पर खड़े होकर नहीं गा रहे हो तो दैट इज नॉट अ वायलेशन पर से। मतलब ठीक है, आप अपनी ड्यूटी नहीं फॉलो कर रहे हो एज इंडियन सिटीजन, बट वो वायलेशन नहीं है। लेकिन मान लो कि आप झंडे की बेइज्जती कर रहे हो, झंडे को पैर के नीचे दबा रहे हो, है ना, या फिर उसको फेंक रहे हो, वो इंडिया में एक पर्टिकुलर लॉ है जिसके अंडर एक ऑफेंस है, राइट? तो अगर किसी लॉ के अंदर आ जाएगा तो वो ऑफेंस होगा। फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट एनफोर्सेबल अगेन। तो फंडामेंटल ड्यूटी की एनफोर्सेबिलिटी डीपीएसपी जैसी है, उसको आप कोर्ट नहीं ले जा सकते, राइट? समझते कौन सी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है हमारी? तो आप सबको पता होना चाहिए सारी आपकी भी ड्यूटीज है। ओके, फर्स्ट इज अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की बात मानो, एंड रिस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम एंड जो भी भारत के इंस्टीट्यूशन है। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? Second is cherish and follow noble ideas that inspired the national freedom struggle. So we take a lot of pride in our freedom fighters, right? So that is what our responsibility is कि भाई this freedom is a long long struggle. तो हमको इसको intact रखना है, हमको आगे बढ़ना है, right? Also uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India. तो इंडिया के हमेशा इंडिया के फेवर में काम करना है, चाहे कुछ भी हो। वी आर देयर फॉर आवर कंट्री, ये हमेशा होना चाहिए, ठीक है? डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। आपको याद है मैंने आपको एक आर्टिकल 23 पढ़ाया था लास्ट एपिसोड में, जहां पर हमने डिस्कस किया था कि सरकार आपको बुला सकती है फॉर सम नेशनल ड्यूटी और फॉर पब्लिक पर्पस इफ नीडेड। सो दैट इज आल्सो अ फंडामेंटल ड्यूटी। बट गवर्नमेंट कैन मेक गवर्नमेंट कैन मेक अ लॉ वेयर यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ेगा अगर ऐसे बुलाया है तो। 5 बात करते हैं, प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। मतलब भाईचारे के साथ रहो, अच्छे से रहो सबके साथ, है ना, सोसाइटी में मिल बांट कर रहो। वी आर वेरी डाइवर्स कंट्री। तो हमारी कंट्री की सबसे ब्यूटीफुल बात ही यही है कि हम बहुत अलग अलग कल्चर्स में साथ में मिलकर रहते हैं, है ना। मतलब there's a possibility that you may not like a particular culture, but then ऐसा थोड़ी कि उसको देश से भगा देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं करते हम लोग, राइट? एक सेकेंड, ओके, ठीक है। देन कम्स टू प्रोटेक्ट एंड प्रोवाइड द एनवायरनमेंट, सॉरी नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे फॉरेस्ट, लेक्स, इन सबको प्रोटेक्ट करो, है ना, अच्छे से उनको रखो। उसके अलावा वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ कंट्रीज कंपोजिट कल्चर, जो हमारा इतना अच्छा कल्चर है, वाइड कल्चर है, अलग अलग टाइप का, जो हमने पूरी दुनिया को दिया है, उसको प्रोटेक्ट करो, राइट? डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। हमेशा क्यूरियस रहो, है ना। एज अ क्लैड एस्पिरेंट हम क्लास में कई बार बोलते हैं कि ये नहीं कि सर क्या पढ़े, बस इतना ही पढ़ ले क्या, उतना ही कर ले क्या, नहीं। इट्स इंपॉर्टेंट टू बी क्यूरियस। क्या एक्स्ट्रा कर ले, क्या ऐसा कर ले कि हमारी नॉलेज बढ़े, क्या ऐसा करे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। ओके, so this is 8. Now we have 9, 10 and 11. Safeguard property and like abjure violence. Violence किसी भी तरीके का मत करो. Strive toward excellence in all the fields. है ना, become excellent. ये हम यहाँ पे बोलते हैं 12 minutes to clad बार बार। ये एक एक्स्ट्रा ड्यूटी थी जो ऐड की गई थी कि 6 से 14 साल के बच्चों को हमेशा स्कूल भेजो, है ना। They should always be sent to school. It's free, गवर्नमेंट स्कूल्स, एंड कंपल्सरीली भेजना पड़ता है। कंपल्सरी का मतलब है कि इफ अ चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 years is not going to school, their parents can be held liable for the same, right? So ये बहुत इंपॉर्टेंट सारी की सारी फंडामेंटल ड्यूटीज है।
which everybody must know because it is our duties. आपकी और मेरी ड्यूटीज है हमारे देश के प्रति. तो राइट्स तो हम एंजॉय करते हैं, बट ड्यूटीज भी हमें सारी की सारी करनी पड़ेगी, राइट? सो दैट इज इट अबाउट दिस सेशन फ्रॉम माय एंड, एंड आई होप इट वाज यूजफुल. वेरी क्विक सेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आपको सारी की सारी डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज पता होनी चाहिए, ऐसे नंबर वाइज नहीं, बट आपको आइडिया रहना चाहिए. एंड यू शुड नो व्हाट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. बिकॉज पांचों राइट्स का कोई सेंस ही नहीं है अगर हमारे को ये नहीं पता कि उन राइट्स को अगर वायलेट हुआ तो करना क्या है. सो विच इज द सिक्स फंडामेंटल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. So that's it about this session from my end. Thank you so much. Wait for the next episode. We'll be again coming very soon with the next episode for this, where we'll discuss some very interesting concepts as usual. That's it. Stay tuned. Make your very good notes and prepare well. Thank you guys. Keep smiling.